So I was asking the Lord and he gave me the word for today, the question that so many people has. और आज का परमेश्वर ने जो मुझे आज वचन दिया वो एक सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं. So many people have this question, why won't God heal me? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु मुझे चंगा क्यों नहीं करता. Right? So many people have this question. They say, I go to church, I'm a good person, I read the Bible, I have fasted, so why won't God heal me? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैं तो कलीसिया जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, संगति करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा. And then they come to church and they see somebody else receiving their healing. और फिर वो चर्च आते हैं और देखते हैं किसी और को चंगा होते हुए. And then they say, और फिर वो कहते हैं, why did Jesus do it for him and why didn't Jesus do it for me? क्यों यीशु ने उसको तो चंगा कर दिया, उसके लिए तो किया, लेकिन मुझे नहीं चंगा किया. So today, I want you to hear this message carefully because after this day, you cannot ask this question. तो मैं चाहता हूं कि आज के वचन को आप ध्यान से सुने, क्योंकि आज के बाद आप ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे. Amen? Amen. Now, if a person comes to you and would ask you this question, why doesn't God love me? What would you say? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और बोले कि परमेश्वर मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, तो आप उसे क्या कहेंगे? What would you say? क्या कहेंगे बताइए? You would say that God loves you. आप बोलेंगे प्रभु आपसे प्यार करता है. John 3:16 says, for God so loved the world. यूहन्ना 3:16 कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया That he gave his only begotten son. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. Right? If somebody would say, why won't God save me? What would you tell them? अगर कोई आपके पास आकर ये कहे क्यों परमेश्वर मुझे बचाता नहीं या मेरा उद्धार कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? What would you say? आप क्या कहेंगे? You would say that God gave his son for the entire world. आप कहेंगे परमेश्वर ने अपने बेटे को पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए दे दिया. But if that person would say, why won't God send his son for me? If the person would say, why won't God send his son for me? लेकिन अगर वो व्यक्ति कहे क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को मेरे लिए नहीं भेजा? Imagine if that person prays, God, अगर please send your son for me. मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो आपके पास आता है वो ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु अपने बेटे को मेरे लिए भेज. Would God send his son again? क्या परमेश्वर अपने बेटे को फिर से भेजेगा? Are you sure? पक्का? Because he sent his son once and his son accomplished the work for which the father sent him. क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को एक बार भेजा और उस बेटे ने उस काम को पूरी तरीके से पूरा कर दिया. Now go to John 3:16. Very famous verse, everyone knows it. यूहन्ना 3:16 पर जाएंगे. God so loved the world that he gave his only begotten son. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया. So the father gave his son. पिता ने अपना पुत्र हमें हमारे लिए दे दिया. Bible says so that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. So from God's side, तो परमेश्वर की तरफ से he gave his son उसने अपना बेटा दे दिया for the entire world. पूरी दुनिया के लिए. Now I want you to go to John 1:12. अब यूहन्ना 1:12 पे जाइए. Okay? So God, say this after me. God gave his son. ने अपना बेटा दे दिया. Is there any doubt about it? क्या इस बात में कोई संदेह है? Did he give his son for only few chosen frozen or did he give his son for the entire humanity? क्या उसने अपना बेटा किसी एक दो के लिए दिया या पूरी दुनिया के लिए दिया? He gave his son for everyone. उसने अपने बेटे को पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए दिया. Amen? But now the Bible says, as many as received him. लेकिन बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण किया. Now look at me, hear carefully. ध्यान से सुनिए. God gave his son. परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया. But now as many as received him. लेकिन अब जितनों ने उस पर विश्वास किया या उसको ग्रहण किया. That means God giving his son would not do anything automatic. There has to be a response from the people that they have to receive him.
इसका मतलब परमेश्वर ने जो अपना बेटा दे दिया वही काफी नहीं है, लोगों को जरूरी है कि वो उसे ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें। He gave his son for how many people? उसने अपना बेटा कितनों Come के on, लिए come on, दिया? church, talk to me. For all, सबके लिए। right? Are all saved? क्या सारे के सारे बचाए गए हैं? Is it God's will to save all? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि सब उद्धार पाएं? Then why are all not saved? तो फिर क्यों सबने उद्धार नहीं पाया? Because as many as received him, Hallelujah. they got saved. क्योंकि जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया। So it's not just a matter of God giving, it's also a matter of you receiving. क्योंकि बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती कि परमेश्वर दे दे, लेकिन जरूरी है कि आप ग्रहण भी कर लें। Amen? Amen. So this question would be invalid if a question would ask, why don't God heal or save me? तो फिर ये सवाल जो है ये बिल्कुल गलत है पूछना कि क्यों परमेश्वर मुझे नहीं बचाता या मेरा उद्धार क्यों नहीं है। Imagine you preach the gospel to someone. मान लीजिए आपने किसी को सुसमाचार प्रचार You किया, told them that Jesus came as the Lamb of God, sacrificed himself, and you can have everlasting life. आपने प्रचार किया कि यीशु मसीह एक परमेश्वर का मेमना बनकर आया, आपके पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया और अब आपके पास अनंत जीवन है। And then that person says, और फिर वो व्यक्ति कहता है, I know one day God is going to save me. मैं जानता हूं कि प्रभु एक दिन तो मुझे जरूर बचाएगा, मेरा I know उद्धार God करेगा। will save me one day. मैं जानता हूं प्रभु एक दिन मुझे बचा लेगा, What मेरा would you उद्धार say? करेगा। आप क्या You'll कहेंगे? say, no, sir. You don't get it. आप कहेंगे अरे नहीं भाई तुम समझे नहीं, God is not going to save you one day. प्रभु तुम्हें एक दिन बचाएगा नहीं। God has already made the provision 2000 years before on the cross. 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दे दिया है, दे Now चुका you है। don't have to wait on God. The reality is God is waiting on you. अब तुम्हें परमेश्वर पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि वो कुछ करेगा, लेकिन असलियत ये है कि परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि कब तुम उस पर कार्य करो। Because God gave his son. क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, And if you will receive him, और अब यदि आप उसे ग्रहण कर लें, the Bible says he will give you the right to become a child of God. बाइबल बताती है कि वो फिर आपको अधिकार देगा कि आप उसके बेटे और बेटी बन सकें। But he tells you, लेकिन वो आपको बताता है, no. He gave his son for you. What about me? ओ तुम्हारे लिए तो परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, लेकिन मेरा क्या? You'll say, no, sir. He gave his son for the entire humanity. आप बोलेंगे नहीं भाई, परमेश्वर ने अपना बेटा पूरी जगत के लिए दिया है, पूरी इंसानियत Now के लिए। tell me, does it happen that when one person comes to Jesus, Jesus comes down from heaven, goes to the cross, sheds his blood personally for everyone? क्या आपको लगता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरता है, फिर से क्रूस पर जाकर अपना लहू हर एक के लिए बहाता है हर बार? Why? क्यों? Because the Bible says in the book of Hebrews, he sacrificed himself once and for all. क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक बार अपना लहू सारे जगत के लिए बहाया। That means salvation is today and salvation is now. इसका मतलब उद्धार अभी है, यही है। For anyone who will respond to the gospel. जो कोई परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करता है उसके लिए उद्धार है। Salvation is not for future. उद्धार भविष्य के लिए नहीं है, It's a done deal. हो चुका है। God has done his part. परमेश्वर ने अपना हिस्सा पूरा कर दिया जो उसको Now करना था। God doesn't have to do anything for mankind to be saved. Now mankind have to respond to the gospel. अब परमेश्वर का कोई कार्य बाकी नहीं रहा कि जो उसे करना पड़े उद्धार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए। अब जरूरी है कि हम उसके उस सुसमाचार को ग्रहण करें उद्धार पाने के लिए। Amen. Amen. Now let's come back to the first question. अब पहले सवाल के पास वापस आते Why हैं। won't God heal me? क्यों परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करता? Because the church has been taught that salvation and healing are two different things. क्योंकि कलीसिया ने हमेशा से ये सिखाया है कि उद्धार और चंगाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। So you will hear so many people say this, I know God will heal me one day. और आपने ये बहुत से लोगों से सुना होगा कि वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे एक दिन चंगा करेगा, And then they die in their sickness.
और फिर वो अपनी बीमारी में ही मर जाते हैं। And then people say, this guy was believing. और फिर लोग कहते हैं ये इंसान तो विश्वास कर रहा था, He believed that God will heal him someday. वो ये विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मुझे किसी एक दिन चंगा करेगा। Why did he die then? तो फिर वो क्यों मर गया? Then I ask you a question. फिर मैं आपसे एक सवाल If पूछता a हूँ, person who is believing that God will save him someday, will he get saved? वो व्यक्ति जो ये विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर मुझे एक दिन बचाएगा, क्या वो सच में बच चुका है या उसका उद्धार हुआ है? Why? क्यों? Because he is keeping that provision of God for future wherein he can receive it now. क्योंकि उसने जो प्रभु कर चुका है, जो दे चुका है पहले से, उसका वो इंतजार कर रहा है बजाय इसके कि वो उसको अभी प्राप्त कर ले, अभी ले Amen. ले। Book of Psalms 107 verses 20. भजन संहिता 107 उसका 20। It talks about God the Father. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। This is not the right translation in Hindi. In English it says he has healed them. It's a past tense. जो ये वचन जो है वो ये कहता है कि उसने पहले से ही हमें चंगा कर दिया है। When he sent his word, now tell me who is the word? अब मुझे बताइए कौन है वचन? John 1:14. Quickly go to John यूहन्ना 1:14. 1:14। Let's see what the Bible says. Wow. Guys, are we learning something? Okay. And the word became flesh and dwelt among us. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच Just God. और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। The word became flesh. वचन देहधारी हुआ। In Psalm 107 verses 20 we saw God sent his word and healed them. और हमने देखा भजन संहिता में कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उसने हमें चंगा किया। And the word became flesh. और वो वचन देहधारी हुआ। The same way as God sent his son for the forgiveness of sins is the same way God sent his son for the healing of every sickness and disease. जैसे परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा हमारे उद्धार के लिए, वैसे ही उसने अपने बेटे को भेजा हमारी चंगाई के लिए। God doesn't treat sins and sicknesses separately. परमेश्वर पापों और बीमारियों को अलग-अलग नहीं देखता। For God sees sin and sickness exactly the same. परमेश्वर पाप को और बीमारी को एक जैसा देखता है। Amen? Are you getting, church? Are you getting what I'm आप saying? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? I'm telling you why it's illegal to ask this question, why doesn't God heal me? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सवाल ही गलत है पूछना कि क्यों परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करता। It's the same question that why won't God save me? ये ऐसा ही है जैसे ये सवाल पूछना कि प्रभु क्यों मुझे उद्धार नहीं दे रहा या मुझे बचा नहीं Because रहा। from God's side, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से as he has sacrificed himself for the sins of humanity, so he bore the stripes for every sickness and Hallelujah. disease to be healed. जैसे यीशु ने क्रूस पर हम सबके लिए जो लहू बहाया हमारे पापों के लिए, ऐसे ही बीमारियां, ऐसे ही उसने सबके लिए कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिल सके। Amen? Guys, I hope you get it. मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आए। So that means you would go to somebody and you would say, hey, you don't have to live in your sins anymore because Jesus bore your sins. आज जैसे आप किसी के पास जाएं और बोलें कि तुम्हें अपने पापों में रहने की जरूरत नहीं क्योंकि यीशु ने क्रूस पर तुम्हारे पापों की क्षमा दे दी। The church has no problem with that. कलीसिया को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। But the problem is when you tell people लेकिन समस्या तब आती है जब आप लोगों को ये बताते हैं that Jesus bore your sickness, you don't have to live in sickness. कि आपको अपनी बीमारी में रहने की जरूरत नहीं क्योंकि यीशु ने आपकी बीमारियां भी क्रूस पर ले ली। Amen? See, from God's side, salvation and healing were always the same part of the deal. परमेश्वर की तरफ से जो उद्धार और बीमारी है वो दोनों उसने उनको एक ही देखा। That's why Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 11 that so many believers are sick and they are dead because they did not discern the Lord's body. और इसीलिए प्रेरित पौलुस पहले कुरिन्थियों 11 में कहता है कि बहुत से विश्वासी आज भी बीमारी में हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को नहीं जाना। Amen?
See, we have no problem discerning the blood of the Lord. हमें यीशु के लहू को परखने में उसमें कोई दिक्कत So नहीं। there are teachings. Jesus' blood was shed. Your sins are forgiven. Everyone has received that message. हर किसी ने इस संदेश को ग्रहण किया कि यीशु ने अपना लहू बहाया हमारे पापों की क्षमा के लिए। Are you getting? Paul is not saying that the church is sick because they didn't discern the blood. Paul is saying the church is sick because they didn't discern the body. पौलुस ये कहता है कि जो कलीसिया है वो बीमार इसीलिए है क्योंकि उन्होंने यीशु की देह को नहीं समझा। ये नहीं कह रहा कि उसने उसके लहू को नहीं समझा। Everyone knows the power in the blood of Jesus. हर कोई जानता है कि यीशु के लहू में कितना And सामर्थ्य his है blood was shed and we are forgiven of our sins. कि उसने अपना लहू बहाया और हमें पापों की क्षमा But मिली। as his blood forgave you of your sins, so his body that was bruised released healing from all your sickness and diseases. जैसे उसके लहू ने हमें पापों की क्षमा दी ऐसे ही उसके शरीर में जो उसने कोड़े खाए उसके द्वारा हमें चंगाई मिली है। Amen? आमेन। Let me tell you one thing. आपको Okay? मैं एक बात बताता हूँ। What if today, if gospel was preached like this? क्या होता अगर आज के समय में सुसमाचार इस तरीके से If प्रचार किया जाता? salvation was preached like this? अगर उद्धार इस तरीके से प्रचार किया Somebody जाता, comes to you and say, I want to get saved. कोई आपके पास आए और बोले मुझे उद्धार चाहिए And you say, और आप बोले maybe it isn't God's will to save you. ये शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं कि वो आपको उद्धार दे। Perhaps your sin is for the glory of God. हो सकता है कि शायद आपके जो पाप है ना वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। Perhaps God is using this sin to chastise you. हो सकता है कि परमेश्वर इससे आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इस पाप से. इस पाप से आपकी परीक्षा ले रहे हैं। God is using this sin to teach you something. इस पाप से ना परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। Oh, be patient in your sin if God will have mercy to forgive your sin. Be patient in your sin. अरे अपने पाप में जरा थोड़ा धीरज रखो, प्रभु तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा है। Oh, the day of salvation is over with the apostles. You heard that? God isn't healing anyone anymore. परमेश्वर तो अब और किसी को चंगा कर ही नहीं रहा है। So I would say to such preachers, if God isn't healing anyone anymore, that God isn't saving anyone anymore. अगर मैं कहूँगा अगर प्रभु आज किसी को चंगा नहीं कर रहा तो फिर वो अब किसी को उद्धार भी नहीं दे रहा। Are you telling me that the blood of Jesus is still in the action, but his body is now expired? आप ये कह रहे हैं कि उसका लहू तो अभी भी काम करता है लेकिन उसका शरीर जो है वो अब काम नहीं करता। No, the Bible says in Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. बाइबल बताती है इब्रानियों 13 में कि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। Amen? आमीन। He never changes. If you're telling me that God has stopped healing people, then he has changed. वो कभी नहीं बदलता। अगर आप ये कहते हैं कि वो अब किसी को चंगा नहीं करता तो इसका मतलब वो बदल गया है। Amen. Guys, I hope you're getting what I'm saying. If you get this message, you will never have to tolerate any sickness in your body. अगर आप आज का संदेश समझ गए तो आपको दोबारा बीमारी को कभी भी झेलने की जरूरत नहीं है अपने That's शरीर में। why hear carefully, because that is the problem with people. तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये परेशानी है लोगों के साथ They don't hear. कि वो सुनते नहीं है। That's why Jesus has to scream it. He who has an ear, let him hear. इसीलिए यीशु मसीह को बोलना पड़ा जिसके पास सुनने के कान हैं वो सुन ले। Amen. Man, this message will bring you out of your sickness. ये संदेश आपको आपकी बीमारियों से बाहर निकालेगा। Amen. आमीन। This is your day. आज आपका दिन है। Amen. I want to say a scripture. Isaiah 55 verses 11. यशाया 55 उसका 11। Isaiah 55 verses 11. यशाया 55 उसका 11। So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। Amen. How many people agree with this? कितने लोग इस आयत से सहमत होते Are हैं? you sure? Because Bible says
the word that comes out from the mouth of God will never return back to him void. क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो वचन उसके मुंह से निकलेगा वो कभी व्यर्थ ना जाएगा, But it will accomplish for which it was sent. लेकिन जिस काम के लिए वो बोला गया है उस काम को वो पूरा करेगा। It will fulfill the mission. वो अपने काम को, अपने मकसद को पूरा करेगा। And if Jesus is the word, और अगर यीशु मसीह वचन है, then sometime in his ministry, तो कभी कभार उसकी सेवकाई में sometime he would have said, it is finished. तो उसने अपनी सेवकाई में कहा है कि पूरा हुआ। Guys, are you getting me? आप If every word that comes out from the mouth of God does the work, that's why Jesus said, it is finished. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अब पूरा हुआ। And what does Psalm 107 say? That he sent forth his word and healed them. So that means from Jesus' side, he said, my work is finished. और वचन में जैसे लिखा है, वे अपने वचन के द्वारा उसने अपना वचन भेजा और चंगा किया, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अब पूरा हुआ। Now hear carefully. You don't have to pray to God to heal you. अब आपको परमेश्वर से ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि मुझे चंगा कर। You don't have to fast and cry and beg for God to heal you. अब आपको परमेश्वर के सामने उपवास करना और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं कि मुझे चंगा कर। Can you imagine if you look at somebody and they are fasting, they say, oh God, why won't you save me, God? क्या आप सोच सकते हैं आपके सामने कोई आए और वो उपवास करके रो रो के प्रार्थना करे कि हे प्रभु तू मुझे क्यों नहीं बचाता, मेरा Oh उद्धार God, कर। have mercy on me and give me your salvation. ओ प्रभु मुझ पर दया कर और मुझे अपना उद्धार दे। Do you preach salvation to anybody that you have to fast and then you'll receive salvation? क्या आपने कभी किसी को ऐसा सुसमाचार प्रचार किया है कि आपको उपवास रखना पड़ेगा और तब आपको उद्धार मिलेगा? But there are so many times when pastor tells people, fast and then you'll receive your healing. लेकिन बहुत से कलीसिया में ऐसे पासवान हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं कि आप उपवास करिए और परमेश्वर आपको चंगा You करेगा। don't fast to receive your healing. You believe the written word of God and you receive your healing by faith. हालेलुया। आप उपवास करके चंगाई नहीं प्राप्त करते, आप वचन जैसा कहता है आप उसको ग्रहण करते हैं, विश्वास के द्वारा आप चंगाई को पाते हैं। You can fast 365 days a year and then die by fasting, but you will not receive healing until you will believe that it's a done deal. आप पूरे साल उपवास रख सकते हैं और अपनी बीमारी आप पूरे साल उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक चंगाई नहीं मिलेगी। Amen? And if you can hear God's voice, और यदि आप परमेश्वर की आवाज you को say, सुन सकते हैं, God, why don't you heal me? God would say, I did 2000 years ago. Why won't you believe me? आप कहेंगे ओ प्रभु तू मुझे चंगा क्यों नहीं करता, और प्रभु कहेगा मैं कर चुका, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है, पूरा हो चुका है। Amen? This prayer will never be answered ऐसी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलेगा, because it was already answered 2000 years ago. क्योंकि इस प्रार्थना का उत्तर तो 2000 साल पहले ही दे दिया गया। So stop telling God to do something which He has already done. तो अब परमेश्वर को जो काम वो कर चुका है उसे फिर से करने के लिए नहीं बोलिए। Amen? Some people don't like it, कुछ लोगों को ये संदेश पसंद नहीं, but I want to tell you the truth. लेकिन मैं आपको सच बताना If चाहता you हूँ, are asking God to do something which He has already done, it's nothing but unbelief. अगर आप परमेश्वर को कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं जो वो पहले से ही कर चुका है, तो ये अविश्वास है। Amen? And so many Christians don't receive their healing because they depend on their senses and not on faith. और बहुत से लोग जो हैं अपनी चंगाई को इसीलिए प्राप्त नहीं करते क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर ज्यादा जाते हैं बजाय विश्वास के। So if they will go to a meeting to get healed, they would expect a feeling. तो जब वो किसी सभा में जाते हैं चंगाई पाने के लिए तो वो अपनी भावनाओं पर जाते हैं। Don't expect a feeling, expect healing. आप भावना नहीं लेकिन चंगाई ग्रहण करिए। Amen? Healing has nothing to do with feeling. चंगाई का आपकी भावनाओं से कोई लेना देना Like नहीं है, salvation has nothing to do with feeling. जैसे कि उद्धार का आपकी भावनाओं से कोई लेना देना How नहीं। many people, when you were saved, there were two wings that came out of your back? आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जब उद्धार पाया तो आपके दो पंख निकल आए? Did you feel saved?
क्या आपको लगा, आपको ऐसा महसूस हुआ कि There are आप some बच गए? days I don't feel saved. ऐसे बहुत से दिन हैं जब मुझे लगता है कि मैंने उद्धार नहीं पाया। But praise God, we don't depend on our feelings. We base our faith on the written word of God. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम भावनाओं पर नहीं जाते, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। जो Because कहते हैं। if you base your relationships on feelings, man, you are standing on shallow waters. अगर आप अपना भरोसा अपनी भावनाओं पर रखते हैं तो ये ऐसा है जैसे कि डगमगाने जैसा। Amen? Are you getting what I'm saying? Because someday you will feel awesome, someday you will not feel good. क्योंकि किसी दिन तो ऐसा हो सकता है कि आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और किसी दिन आप बहुत उदास सा महसूस करेंगे। All the young people here, you ask them, what is love? Oh, love is that butterfly feeling. The Yeah. butterflies that fly. यहाँ पर अगर हम जवानों से पूछे प्रेम क्या है, तो वो उनके सबके अलग अलग अनुवाद होते हैं। कोई कहता है प्रेम तो एकदम एक तितली जैसा है, Or maybe if they have seen a lot of Bollywood movies और अगर उन्होंने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज देखी हैं and they see a girl, they're like, एक लड़की थी दीवानी सी. तो ऐसे बोलेंगे। You know, they have this sound like ting, 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 ting. तो उनके कानों में से तानपुरा बजने लगेगा। And that's why you see so many divorces happening. और इसीलिए आप देखते हैं कि लोगों की इतनी शादियों में तलाक हो रहा है, Because they feel like loving that person for a few months, then they don't feel, the feeling is gone. क्योंकि कुछ महीने तो बड़ी भावना जगती है और बड़ा प्यार आता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद लगता है अब प्यार गायब हो गया। That's why love is not a feeling, it's a decision. इसीलिए प्रेम कोई भावना नहीं है, वो एक निर्णय है जो आप लेते हैं। Amen? Like Jesus decided to sacrifice himself for us even when he didn't feel good about it. जैसे कि यीशु मसीह ने इस बात का निर्णय लिया कि मैं प्रेम करता हूं तो मैं अपना बलिदान दूंगा, भले ही उसको वैसा करना अच्छा ना लग रहा हो। Amen? So guys, are you getting, you get what you expect. आप जिस बात की आशा रखते हैं आपको वही मिलता है। So if a person is sick and they come to meeting, और यदि कोई व्यक्ति बीमार है और वो सभा में आए and he said, be healed in Jesus' name. और प्रार्थना की जाए कि चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, कुछ गरम ठंडा तो लगा नहीं, कुछ कुछ भी झुरझुरी, किसी ने बोला था झुरझुरी होती है, सुइयां चुभती हैं, गरम गरम लगता है, प्रभु मूव लगाता है. Healing has no relationship with, if you feel it, awesome. If you don't feel it, no problem. चंगाई का आपके कुछ महसूस होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता। अगर आप कुछ महसूस करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं महसूस करते तो भी अच्छी बात है। Amen. Are you getting, church, what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? If you would apply this principle in your life, no matter how chronic sickness you are facing, you will walk out of that sickness free in the name of Jesus. अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस जगह से संपूर्ण रूप से चंगे होकर जाएंगे। Amen. The confusion will fly away if you will see salvation and healing together. अगर आप उद्धार और चंगाई दोनों को एक तरीके से देखेंगे तो आपकी जो ये कंफ्यूजन है ये हट जाएगी। Interchange salvation and healing and you will have your answer. आप उद्धार को चंगाई की जगह रख के चंगाई को उद्धार की जगह रख के देखिए, आपकी सारी कंफ्यूजन मिट जाएगी। Is it God's will for everyone to be saved? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई उद्धार पाए? Then why aren't everyone saved? तो फिर क्यों सबने उद्धार नहीं पाया? Because क्यों? God is teaching some people. क्योंकि प्रभु कुछ सिखाना चाह रहा है बीमारियों से? No. But so many people say, if it was God's will to heal, then why are there so many sick people? तो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर प्रभु की इच्छा है कि हर कोई चंगा रहे तो क्यों आज भी लोग बीमार हैं? In fact, in the Bible, if you will read, healing and salvation is interchanged with the word sozo. अगर आप बाइबल में देखें तो जो ये शब्द है चंगाई और उद्धार, ये सोजो जो शब्द है उसके साथ In Romans 10:9, it says, if you believe in your heart that Jesus is the Lord and God raised him from the dead and confess it with your mouth, you shall be saved. Sozo. रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे
कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जो ये शब्द है उद्धार, यहाँ पर जो मूल जो शब्द है वो है सोजो। Amen. And when that woman with the issue of blood, when she got healed, Jesus said, "Daughter, your faith has," same word, sozoed you. और वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, जब उसने यीशु को छुआ तो यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जो वहां पे शब्द है वो है सोजो। So for God's side, परमेश्वर की नजर में He sees healing and salvation as same. परमेश्वर की नजर में उद्धार और चंगाई दोनों बराबर है। Amen. As God has done everything for mankind's salvation, so God has done everything for mankind's healing. जैसे परमेश्वर ने इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, उद्धार के लिए जो उद्धार दे दिया है, वैसे ही चंगाई भी दे दी है। Do you think God, Jesus comes in a meeting and he's like, yeah, he is. Yeah, she's wearing white clothes. I'll save her. Yeah, her I'll save. Him I'll save. And I'll save him. And some guy say, Jesus save me. No, not you. Yeah, you I'll save. क्या ऐसा होता है कभी कि किसी सभा में यीशु मसीह आए और कुछ ही लोगों को चुने कि ओ मैं तो इसको ठीक करूं, इसको उद्धार दूंगा, उसको उद्धार दूंगा, लेकिन उसको नहीं दूंगा। Is he picking and choosing whom he will save? क्या वो चुनता है कि वो किसको बचाएगा? In the same way, he doesn't pick and choose whom he will heal. इसी तरीके से वो नहीं चुनता कि वो किस किस को चंगा करेगा। People say, so many sick came, why only few got healed? बहुत से लोग कहते हैं इतने सारे बीमार लोग आए, लेकिन फिर क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों ने चंगाई पाई? So big crowds used to follow Jesus, why only few were saved? इतनी भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, लेकिन फिर भी क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों ने उद्धार पाया? Amen. Healing is always better than feeling. चंगाई आपकी भावनाओं से या जो आप महसूस करते हैं उससे बेहतर है। Amen. Let's go to Romans 4. We'll read from 19 to 21. रोमियो 4:19 से 21। And today, guys, I will tell you an amazing method to receive your healing. Money back guarantee. और आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा कि आप अपनी चंगाई कैसे पा सकते हैं। Money back guarantee. पैसा वसूल गारंटी। Jesus will give you the money. यीशु मसीह आपको पैसे देंगे। Because he said it in his word. क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है। Amen. Hallelujah. Okay. He's accountable to his word. So Romans 4:19. रोमियो 4:19। And this talks about Abraham. ये यहाँ पर अब्राहम की बात कर रहा है। And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead. और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। Okay, now hear carefully. ध्यान से सुनिए। If you can get this secret, man, you will know how to walk in divine health all the days of your life. अगर आप इस भेद को जान गए तो आज आप जान जाएंगे कि दैवीय चंगाई में कैसे चलना है। It's amazing to get healed. ये बहुत अच्छा है कि आप चंगाई पाएं। It's awesome to walk in divine health. लेकिन उससे भी बढ़िया है जब आप जीवन भर दैवीय चंगाई में जिएं। Not only God wants the sick to be healed, God wants the healed to never get sick. परमेश्वर की इच्छा सिर्फ ये नहीं है कि बीमार इंसान चंगा हो जाए, लेकिन वो ये चाहता है कि वो कभी भी बीमार ना पड़े। But you don't realize your health is the biggest wealth that you have. लेकिन आपकी चंगाई आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। Amen. If you have so much of wealth and no health, अगर आपके पास बहुत धन है और चंगाई नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो मजा नहीं है। and that's why what people are doing is we want to earn money. They'll do overtime and overtime and overtime, not take care of their body. Overtime, and then they earn a lot of money, and then they fall sick and in hospital. और लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में ओवर टाइम इतना काम, इतनी मेहनत करते हैं और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, और बाद में वो सारा पैसा कहाँ खर्च होता है? डॉक्टर्स पे। Amen. And the doctors are getting richer and richer. और जो डॉक्टर लोग हैं वो अमीर के अमीर हुए जा रहे हैं। Amen. But God wants all his children to prosper. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे बच्चे समृद्ध हों। And God wants you to walk in health.
और परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, चंगे रहें। Amen. So Bible is teaching us about Abraham, who is called the father of faith. और परमेश्वर हमें अब्राहम के बारे में बता रहा है Can जिसे we go हम back to that विश्वास का verse? पिता कहते So हैं। in that scripture, Bible says God spoke to him when he was 100 years old, and God said, I am going to give you a son, and I will make you father of many nations. और यहाँ बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और कहता है कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और तू जाति जाति का पिता ठहरेगा। And the Bible, he was 100 years old. और वो 100 वर्ष का था। It is like God saying this to a guy who is on wheelchair, that you will be an Olympic champion. ये ऐसा है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को जो व्हील चेयर पर है, जिसके पैर काम नहीं करते, उसको प्रभु कह रहा है कि तू ओलंपिक चैंपियन बनेगा। He has never walked in his life. Abraham, I'm sure he and Sarah would have tried to become mothers and fathers, but 100 years, nothing. They gave up. और 100 वर्ष का अब्राहम था और निश्चय सी बात है कि दोनों ने बहुत ये कोशिश करी होगी कि उनको एक संतान प्राप्त हो, लेकिन नहीं हुआ। He didn't say, oh God, you don't know it. We have tried it. We went to IVF clinics. और अब्राहम ने ये नहीं कहा कि अरे प्रभु तू तो जानता है कि हमने कितनी कोशिश करी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने कोई बहाने नहीं बनाए। God, you know, there is such an old doctor in the city. He's just few years younger than you. क्या प्रभु, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर एक इतना पुराना डॉक्टर है, हम उसके पास भी गए। And he said और उसने कहा that we can never become mother and father. He told us, why don't you adopt some babies? और उसने अपनी उस डॉक्टर ने कहा कि आपको कभी भी संतान प्राप्ति नहीं होगी, और उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना हम बच्चे गोद ले लें। Maybe God didn't give you babies because God wanted you to spend more time with him. और परमेश्वर ने इसीलिए तुम्हें बच्चे नहीं दिए कि वो चाहता है कि तुम परमेश्वर के साथ और समय बिता सको। Isn't it amazing? Amazing. That some people know that much theology which will help them to be sick. They know those verses. Amen? कुछ लोग वचन को इतना ही जानते हैं, इस तरीके से जानते हैं कि वो बीमार ही रहेंगे अपनी जिंदगी भर। So you tell them, God wants you to be healed. They'll say, आप उनको बोलेंगे परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, चंगे रहें, लेकिन वो कहेंगे what लेकिन about Paul's thorn in flesh? तो फिर वो पौलुस के उस कांटे के बारे में क्या बोलते हो? What about Job? और फिर अय्यूब के बारे में क्या? What about Timothy? और फिर तिमुथियुस के बारे में That बोलो। Paul told Timothy, थोड़ी ले लिया कर। So I think about these people, तो मुझे ऐसे लोगों के बारे में ऐसा लगता है, and I want to talk to them someday in this series. I will talk to them. ये जो शिक्षा चल रही है इसमें मैं उनसे बात करूंगा। But I want to talk to that person. You say, Paul got thorn because of abundance of visions and revelations. So don't compare yourself with Paul. पौलुस के देह में जो वो कांटे की बात कर रहा है वो था जो जितने प्रकाशन जो उसको परमेश्वर ने दिए थे, तो अपनी तुलना पौलुस के साथ नहीं करो। He gave his life for the gospel. You come to church 12 p.m. when the service is about to be over. So don't compare yourself with Paul. पौलुस ने अपना पूरा जीवन उस सुसमाचार के लिए दे दिया, और तुम लोग जो ऐसी बातें करते हो, 12 बजे चर्च आते हो, जब खत्म हो जाती है सर्विस, तो अपना जीवन पौलुस के साथ तुलना मत करो। Amen? Amen. You are not qualified to compare your life with Paul. अपनी तुलना पौलुस प्रेरित के साथ तो बिल्कुल भी मत करो। Okay. There is more, but आगे के लिए रखते हैं. पिक्चर अभी बाकी है, बाद में। Amen? So Bible says that the way Abraham received a son is the way you receive healing. बाइबल बताती है कि जैसे अब्राहम ने अपने उस संतान को ग्रहण किया, उस वायदे की संतान को, वैसे ही आप अपनी चंगाई को भी ग्रहण करते हैं। Because what did we learn? That when God sends forth His word,
it does not come back void. क्योंकि हमने क्या सीखा कि जब परमेश्वर अपने वचन को भेजता है तो वो वचन उस कार्य को पूरा करके लौटता है. That means when God said that I am going to make you a father of many nations, that word came out of God's mouth, went into Abraham, shuk, 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 shuk. Whatever that word had to do with him and Sarah, the word started healing their internal organs, even though Abraham felt nothing. और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू जाति जाति का पिता ठहरेगा, तो उसके मुख से निकला हुआ उस वचन ने उसके अंदर कुछ ऐसा किया जो जिसने उसको चंगा किया और उस कार्य को जिसके लिए वो बोला गया था पूरा किया. Amen, guys. Are you with me? Yes. Right? So that's why, come on, go back to that verse. Abraham said, I want you all to underline it in your Bible. He did not consider his own body. 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 मैं चाहता हूँ मेरा पेट. Hey, believe the word of God over your symptoms and the healing will manifest. हालेलुया. आप परमेश्वर के वचन को अपने शरीर के जो भी लक्षण है उनसे ऊपर रखिए. If you consider your body all the time, you are not walking in faith. अगर आप अपने शरीर में जो लक्षण हो रहे हैं हमेशा उन पर ही ध्यान दे रहे हैं तो आप विश्वास में नहीं चल रहे हैं. Abraham had this response. He said, if my father said it, I believe it, and that has been done in Jesus' name. और अब्राहम ने क्या किया, उसने बस विश्वास किया. उसने कहा मेरे पिता ने जो कहा है वो हो गया, मतलब हो गया. I don't have to feel anything. मुझे कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं है. गरम ठंडा, सुई लगना, ठंडा लगना. Don't have to feel anything. आपको कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं है शरीर में. Because Bible doesn't say for as many as felt him. अरे चर्च में कैसा लगा तुम्हें? बड़ा गरम लगा. बाइबल ये नहीं कहती कि जितनों ने महसूस किया, लेकिन बाइबल कहती है जितनों ने उसको ग्रहण किया या उस पर भरोसा किया. Amen. Much of our theology is based on feelings. हमारी आधे से ज्यादा जो विश्वास करना है वो हमारी भावनाओं पर निर्भर ना करे. कैसा था आज चर्च में? मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया. अच्छा फिर क्या हुआ? ठीक हुए आप? नहीं, वापस बीमारी से वापस आ. अरे पीछे वाले ने हाथ रखा था तुम्हारे ऊपर. बिकॉज यीशु मसीह अगर हाथ रख देगा तो ऐसे वापस नहीं आओगे. Amen. So let's change the way we see scriptures. हम अपने नजरिए को बदले कि हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं. And I challenge you, if you will apply this word in your life, you are walking out of this place completely healed. हालेलुया. In Jesus' अगर name. आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, मैं चुनौती देता हूं आप इस जगह से संपूर्ण रूप से स्वस्थ और चंगे होकर जाएंगे. Amen. That means, a beautiful example in the Bible is Mary. एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो बाइबल में है वो है मरियम का. She's a teenager. वो एक युवती है. And young girl. एक जवान लड़की है. And an angel comes to her. और एक स्वर्गदूत उसके पास आता है. And she says, you're going to bear a son. His name will be Jesus. He will be God in flesh. और वो स्वर्गदूत उससे कहता है कि तुम एक संतान तुमसे होगी और तुम उसका नाम यीशु रखोगी. You know what she says? Man, I love that. आपको पता है उसने क्या कहा? और She उसने says, कहा बहुत अच्छा बोला. let it be done unto me as per your word. और वो कहती है जैसा तू कहता है वैसा ही मेरे साथ हो. What if we have this attitude that we tell God, God, let it be done unto me as per your word, not as per my feeling, but as per your word. कैसा होगा यदि हम परमेश्वर को ये बोले कि प्रभु मेरे साथ वैसा ही हो जैसा तेरा वचन कहता है, मेरी भावनाओं के मुताबिक नहीं लेकिन तेरे वचन के अनुसार. Okay, now hear carefully. I want you to write it down. If you want to write it down, the way to receive healing. So I'm telling you though, how to receive healing. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को लिख लें कि कैसे हम चंगाई को ग्रहण करें. Write it down, okay? You have to time stamp your healing. Write it down. Come on. You have to time stamp your healing. आपको समय की मोहर लगानी है. Hear carefully. Because if you don't time stamp it, you will always say, I know God will.
क्योंकि अगर आप समय की मोहर नहीं लगाएंगे तो आप हमेशा ये बोलेंगे कि एक दिन आएगा जब प्रभु मुझे चंगा करेगा। Now look at me. When you are time stamping, you are not saying God is healing me now. You are saying God has already healed me, but I am receiving it at that time. आप जब ऐसा समय की जब मोहर लगा रहे हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, आप कह रहे हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है और मैं उस चंगाई को अभी ग्रहण करता हूँ। Amen? Like some people say, I got born again in 1970. Now that Jesus didn't go on the cross 1970. अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने 1970 में उद्धार पाया। Jesus didn't go on the cross 1970. तो यीशु मसीह 1970 में क्रूस पर नहीं गया था। No, that is the time they received their salvation. वो समय था जब उस व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण किया। Amen? Guys, are you getting what I'm saying? That means when somebody prays for you or even doesn't pray for you, you don't need anybody to pray for you. इसका मतलब कि जब किसी ने आपके लिए प्रार्थना करी या किसी ने ना भी करी हो, जरूरी नहीं है कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे। लेकिन यदि आप अपने विश्वास में नए हैं, we will stand for you for your healing. हम आपकी चंगाई के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। Amen. So that means how should you receive your healing? इसका मतलब आपको अपनी चंगाई कैसे लेनी है। Church, are you hearing what I'm saying? आप ध्यान से सुनिए। That means when somebody prays for you, जब आपके लिए कोई प्रार्थना करे, you have to receive it by faith. आपको विश्वास के साथ अपनी चंगाई ग्रहण करनी है। That means if somebody prayed for you at 11:35, इसका मतलब किसी ने अगर 11:35 पर आपके लिए प्रार्थना करी, then you say, "Thank you, Father, I received my healing at 11:35 a.m." तो आप कहेंगे, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी चंगाई को 11:35 पर ले लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ। Amen. मैं And then Bible, let's go back to that scripture of Abraham. Okay. What happened? How Abraham, he did not waver at the promise of God through unbelief. He was not like, hoga, nahi hoga, hoga, nahi hoga. He wasn't like that. He's like, hoga, 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 hoga. Why? Because the word of God does not return void. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं लौटता, इसीलिए अब्राहम ने जो परमेश्वर ने उस पर उसको कहा, उस पर उसने संदेह ना करा। And then Bible says, by faith he began to glorify the Father. और बाइबल बताती है कि विश्वास में उसने क्या किया, परमेश्वर को महिमा दी। That means the moment you believe that you have received healing, your next response should be, Father, I thank you, Daddy. You are so good. I am healed from this infirmity, Lord. तो जब कोई आपके लिए प्रार्थना करे, आपको क्या करना है कि उस चंगाई को विश्वास के साथ ग्रहण करके परमेश्वर को महिमा देनी है और धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं चंगा हो चुका हूँ। And maybe you feel terrible that time. और हो सकता है कि प्रार्थना के बावजूद आपको अपने शरीर में सही ना लग रहा हो। And maybe somebody asks you, how do you feel? और हो सकता है कि आपसे कोई पूछे कैसा लग रहा है आपको। I don't think it's wrong to say, I feel terrible, but I believe I'm healed. तो ये कहना कि मुझे अपने शरीर में ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हूँ। Amen. But if you always if you go by your feeling, that's again a trap. But what I'm saying is, लेकिन आप अपनी भावनाओं पर ना जाएं, क्योंकि भावनाओं पर जाना एक ट्रैप की तरह है। let me give you a practical example. मैं आपको एक It's उदाहरण more like you ordered something from Amazon or some online website. मान लीजिए आपने ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर किया है। And when you ordered it, जब आपने ऑर्डर किया, you got a receipt, you got a message on your phone. आपके फोन में आपको एक मैसेज मिल गया And it says your order will be delivered within a week. और आपको अपने फोन में ये मैसेज मिलता है कि आपको आपका ऑर्डर एक हफ्ते में मिल जाएगा। And you call your friend. और आप अपने दोस्त को फोन करते हैं, अरे पता है वही येलो वाली ड्रेस जो पार्टी में उसने पहनी थी, मैंने ऑर्डर कर दी। And your friend comes to your home and says, दिखा दिखा दिखा, कहाँ है ड्रेस दिखा? And you says, ऑर्डर कर दी है, आ रही है। On the way. Are you guys getting what I'm saying? Bible says in Mark, open Mark 11:24. We'll say this scripture and then we'll close. मरकुस 11:24. Mark 11:24. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you have received them and you will have them.
इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen? Amen. You know, recently, if people don't know, like few months back, I was, some people, they gifted me a hoverboard. कुछ लोगों ने मुझे कुछ महीने पहले एक होवरबोर्ड गिफ्ट किया। And I was flying in that hoverboard. I used to come to church and I used to, लोग चर्च आते थे और मैं उसमें घूम रहा होता था उस होवरबोर्ड में। So one day, तो एक दिन overconfidence आ गया. And I fell very badly. और मैं उससे गिर गया। And the moment when I reached home, my leg was swollen. और जब मैं घर पहुंचा तो मेरा पैर जो है वो इतना सूज गया था। And even if I'll move my leg an inch, it would be an excruciating. Ah! और मैं उसको जरा सा भी अगर हिलाता था तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। And I knew Ram and Sam came to see me, and I knew if I'll go to doctor, वो प्लास्टर लगा देगा. और मैं जानता था कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो वो तो इस पर प्लास्टर लगा देगा। Now again, आप में से किसी की हड्डी टूटी, I'm not saying you do what I did. अगर आप में से किसी की हड्डी टूटे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो करिए जो मैं अरे पहले हड्डी टूटेगी नहीं in Jesus name. Amen. क्योंकि मेरी भी नहीं टूटी. Amen. प्रभु का वचन कहता है मैं तेरी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ. Amen. So I started claiming the scripture. और मैंने वचन को बोलना शुरू किया। And at the middle of night, और आधी रात में I said, Lord, I'm going to time stamp my healing. और मैंने कहा प्रभु मैं अपनी चंगाई पर समय की मोहर लगाता हूँ। So I said, I prayed, I said, Father, your word says, by the stripes of Jesus, I am healed. I receive my healing now. और मैंने कहा पिता यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ तो मैं अपनी चंगाई को विश्वास से इसी समय ग्रहण करता हूँ। And I lifted my hands. मैंने अपने हाथों को उठाया। I said, Father, thank you. मैंने कहा पिता तेरा धन्यवाद हो। I am healed. मैं चंगा हूँ। How did I feel? मुझे महसूस कैसा हो रहा था? Painful. बहुत दर्द था। Terrible. बहुत बुरा। But I kept my faith not on how I felt, but what the word of God said. लेकिन मैंने अपना विश्वास जो मैं महसूस कर रहा था उस पर नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पे रखा। Amen. Because my feelings will change, but the Bible says the word of God is eternal and it will never ever change. क्योंकि जो हमारी भावनाएं हैं जो हम महसूस करते हैं वो तो आती जाती रहती है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत है और वो अपना कार्य पूरा करता है। And when I was, in the middle of night, I had to go to washroom. So when I got up, I was like, it was like terrible, excruciating pain. और जब मुझे आधी रात में जब मुझे वॉशरूम जाना था मैं उठा, बहुत दर्द था मुझे। And my body wanted to cry out and say, you are not healed. और मेरा शरीर जो है वो ये बोलना चाहता था कि तू चंगा नहीं हुआ। You are not healed. तू चंगा नहीं हुआ। But I told myself, no, I am healed. लेकिन मैंने अपने आप को बार-बार ये बोला कि मैं चंगा Because the हूँ। word of God says it. क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। And then I got up in the morning. और फिर मैं सुबह में उठा। I checked my leg. और मैंने अपना पैर पूरी तरीके से चेक किया। I was healed. और मैं पूरी तरीके से चंगा था। Amen. Amen. Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह I'm रहा हूँ? teaching you a practical way to receive your healing. मैं आपको एक साधारण सा तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपनी चंगाई को प्राप्त करना Say है। this after me. Healing मेरे पीछे बोलिए is not चंगाई about feeling. ये भावनाओं के बारे में And नहीं। feeling doesn't guarantee healing. Amen? So feeling or no feeling. कुछ There is महसूस हो healing. चाहे ना हो लेकिन चंगाई आपके लिए है। Amen, church? So if anybody is sick in this place, तो यहाँ पर अगर कोई भी है जो बीमार है, we are going to pray. हम प्रार्थना करेंगे And that time we are going to time stamp our healing. और हम अपनी जो चंगाई है उस पर समय की मोहर को लगा It देंगे। can be a headache. वो कोई सिर दर्द हो सकता है, It can be cancer, tumor. It can be anything. कैंसर, ट्यूमर, किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो। Digestive problem. कोई पाचन की कोई भी समस्या हो। Recently, I met a sister. She had the issue of blood flow. While watching a video, she got healed. Her blood flow stopped.
और एक बहन है जिसको लहू बहने की उनको भी बीमारी थी, और जब उन्होंने इस संदेश को जब इसका वीडियो देखा, उनकी बीमारी से उन्होंने चंगाई I पाई। was saying, Lord, thank you, Jesus, you are the same. The miracles of the Bible are happening today. मैंने कहा यीशु तेरा धन्यवाद हो, वो बाइबल का परमेश्वर जो उस समय चंगा करता था आज भी करता है। Amen. But once you say you have got it, you cannot say that you don't got it. लेकिन जब आपने एक बार कह दिया कि आपको मिल चुका है, तो फिर आप दोबारा ये नहीं कहिए कि मुझे नहीं मिला है। One, if you have ordered that dress from Amazon, you will always say, it's coming. जब आपने एक बार Amazon से कुछ अपना ऑर्डर कर दिया है, तो वो आ रहा है रास्ते में। Amen. When you received your healing, you stand on that confession and you keep saying, at 11:35 a.m. I received my healing. Whether I feel it or I don't feel it, I received it that time. जब आपके लिए प्रार्थना हो चुकी है, जब आपने चंगाई को ग्रहण कर लिया है, उस पर समय की मोहर को लगाइए और अपनी भावनाओं पर मत जाइए, भले ही कैसा ही क्यों ना महसूस हो रहा हो, लेकिन बोलते रहिए कि मैं चंगा हूँ। My friend in Dehradun, his body was getting numb. मेरा एक दोस्त है देहरादून में, उसका जो शरीर है वो सुन्न हो रहा था। His entire body would get numb multiple times. उसका जो शरीर है वो पूरा सुन्न हो जाया करता And था। I went to Dehradun to preach in a seminar. और मैं देहरादून गया प्रचार करने के लिए And I सेमिनार told में। people to timestamp their healing. और मैंने उनको बोला कि आप अपनी जो चंगाई है, जब आप उसे ग्रहण करें, उस पर समय की मोहर को लगाएं। And he looked at his watch and he said, Lord, I receive my healing at this time. और उस मेरे दोस्त ने समय देखा और उसने कहा कि प्रभु मैं अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण कर रहा हूँ। And he got completely healed. और The उसने manifestation. पूर्ण रूप से चंगाई को पाया। Amen. So I want you all to stand up, please. आइए हम सब खड़े हो जाएं। You don't have to walk by feelings, आपको अपनी भावनाओं पर या आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके मुताबिक नहीं but चलना। as you have heard today, लेकिन जैसा आपने आज वचन को सुना that the word that proceeds out from the mouth of God doesn't return void. कि परमेश्वर के मुंह से जब कोई वचन निकलता है तो वो व्यर्थ नहीं जाता। It accomplished for which it is sent. जिस काम के लिए वो बोला गया है वो पूरा करके करता And the है। Bible says God sent forth his word and healed them. और परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उसने चंगा किया। Now it's not a question of God healing you, it's a question of you receiving the healing. अब सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर चंगा करता है या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस चंगाई को ग्रहण करते हैं। Amen. I want you all to close your eyes right now आप सब अपनी आंखों को बंद करें and let's discern the broken body of Jesus. और यीशु मसीह की उस देह को जिसको उसने हमारे लिए तोड़ा, I want you to look at his bruised back for your healing. मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पीठ को जहाँ पर उसने कोड़े खाए उस पर अपना ध्यान लगाएं, उसको And I देखें। want you to say this prayer after me. और मेरे पीछे ये प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में you said that by his stripes तूने कहा कि उसके कोड़े खाए जाने से I was healed. मैं चंगा हो चुका हूँ। And Father, और पिता, we believe your word. हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। So right now, तो इसी समय I believe मैं विश्वास करता हूँ that I am healed. कि मैं चंगा हो चुका हूँ। I receive my healing. मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। And by his stripes, और उसके कोड़े खाए जाने से I am healed. मैं चंगा हो चुका हूँ। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you for my healing. मैं धन्यवाद करता हूँ इस चंगाई के लिए। Come on, church.
Now, like Abraham, lift up your hands and start glorifying God for your healing. और अब अपने हाथों को उठाएं और अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर Come का on, thank the धन्यवाद करें। Father. धन्यवाद पिता। 11:45 a.m. you received your healing. 11:45 आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। You, everyone who is sick, you have received your healing at 11:45 a.m. हर कोई जो यहाँ बीमार है उसने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। Come on, like Abraham now. Like Abraham. अब्राहम की तरह Come on, glorify God. परमेश्वर को महिमा दें, Give him thanks. उसको धन्यवाद करें। Don't look at the symptoms of your body, अपने शरीर में अपने लक्षणों को ना देखें, but believe his word. लेकिन उसके वचन पर ध्यान लगाएं। And his word says, जैसा उसका वचन कहता है, by his stripes you are healed. उसके कोड़े खाए जाने से आप चंगे हो Come चुके on, come on, हैं। come on, worship him, praise him, आइए, adore him, उसकी lift his आराधना name करें, high. उसको धन्यवाद Jesus, करें। Jesus, Jesus, Jesus.